Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SIMCAT, and set is a deductive reasoning based set, and the set says Abhay is an intern in the production quality department at Fresh Bite Food Private Limited, a company that manufactures packaged food. His daily responsibility is to monitor the performance of 5 automated packaging lines, line 1 to line 5, operating throughout the day. Each line is inspected 5 times a day, and Abhay records the number of defective packets during each inspection. At the end of the day, he prepares a consolidated quality audit report. The following information is known about that day's report. The report contains 25 distinct integer values representing the number of defective packages. The smallest recorded value is 1 and the largest is 25. The average number of defective packets per inspection is an integer. The average number of defective packets per line is also integer. The row-wise column form 5 consecutive integer in increasing order from first to fifth. The column-wise average also form 5 consecutive integer in increasing order from line 1 to line 5. During every inspection, line 2 consistently shows a higher number of defective package than line 1. Line 5 consistently shows a higher number of defective packets than line 4. Uh, for each line, the third inspection value is exactly the average of first and fifth. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. What is the sum of the second and fourth inspection reading for line 2? What is the highest difference between the maximum and minimum reading for any single line? What is the difference between the first reading of line 4 and the fifth reading of line 2? What is the fourth reading of line 5? ठीक है, एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट जिसके अंदर क्या कह रहा है कि अभय कोई एक इंटर्न है हु इज रिकॉर्डिंग ऑल द डेटा, और वो जो डेटा है वो कैसे आ रहा है, वो किसी मशीन पे 5 अलग-अलग लाइन मशीन्स हैं जो चल रही हैं, जिसपे वो 5 बार इंस्पेक्शन कर रहा है पूरे दिन में. एंड हर बार जब वो इंस्पेक्ट करता है तो ही गेट्स सम डेटा ऑन डिफेक्टिव पैकेट्स, और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और पूरे दिन में वो ये चीज़ 5 बार कर रहा है. पहला इंस्पेक्शन, दूसरा इंस्पेक्शन, तीसरा इंस्पेक्शन, चौथा, 5वां यहाँ दिख रहा है. ठीक है. Now, what we are supposed to do, we are supposed to identify the numbers ये वाले table के अंदर using these information. चलो, let's start with the first part. The following information is known about the day's data. The report contains 25 integer values representing the number of defective packets, distinct integer values. मतलब ये जो पूरा 5 by 5 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 25 अलग वैल्यूज आने वाले हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू. ठीक है. The smallest recorded value is 1 and the largest is 25. ठीक है, 1 से लेके 25 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए. अब है क्या ना, तुम्हें जब भी ऐसा सेट मिले, सिंस यू नो कि भाई वो सैंपल साइज कितने में से आने वाला है और उनमें से कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें ऑलरेडी दे दी गई हैं, तो क्या करो, सबसे पहला काम वो वैल्यूज को नोट डाउन कर लो जो कि तुम्हें अभी तक मेंशन नहीं की गई है या वो टेबल में नहीं है. दिस इन अ वे बिकम्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द केसेस, बिकॉज तुम आराम से देख पाते हो कि अच्छा ये दोनों का सम इन्हीं से बन पाएगा, या इन दोनों का सम बनाना है तो ये यही दो नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है. जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 1 आ गया है, 2 आ गया है, तो 3 आना बाकी है, 4 आना बाकी है, 5 है, सॉरी 3, 4. ठीक है, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आना बाकी था, 4, 5 इज़ देयर, 6 और 7 आना बाकी है, 8 आ गया है, 9, 10, 11, 12 आना बाकी है, 13 इज़ देयर, 14, 15, 16, 17 आना बाकी है, 18 इज़ देयर, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 ये नंबर्स आना बाकी थे. तो यानी ये कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 नंबर्स है जो भी आने बाकी हैं. यहाँ चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आउट ऑफ 25 7 नंबर्स वर गिवन, 18 नंबर्स वर सपोज टू बी आई फिगर आउट करना था, तो वो हमें यही 18 नंबर है जिसमें से अपने को दिमाग लगाना है. ठीक. अच्छा, चलो एक पार्ट हमने ये यूज़ कर लिया, 1 और 2 से ये चीज़ निकाल ली. पॉइंट नंबर 3, द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव पैकेट्स पर इंस्पेक्शन इज़ एन इंटीजर. ठीक है, एवरेज नंबर है जो किसी भी इंस्पेक्शन का, वो इंटीजर है. द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव पैकेट पर लाइन इज़ आल्सो इंटीजर. अब इनका जो एवरेज है ना, इनका एवरेज वो एक इंटीजर है. वो इंटीजर कब होगा, जब वो मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों का मल्टीपल होगा तभी वो इंटीजर बना होगा. ठीक. तो यानी कि सम ऑफ एनी रो
के बारे में हम कह सकते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 5 एंड दिस कैन आल्सो बी सेट ऑफ सम ऑफ एनी कॉलम इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ये भी अपने को यहाँ पे पता चल रहा है क्योंकि यही सेम चीज इसके बारे में कह रहा है कि लाइन 1 का जो एवरेज है, लाइन 2 का एवरेज, 3 4 5 का एवरेज है, वो क्या होने वाला है, वो इंटीजर होने वाला। और इंटीजर कब होगा, जब इनका जो पूरा सम तैयार होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए था। ठीक है, 3 डन, 4 डन। पॉइंट नंबर 5, द रो वाइज एवरेज फॉर्म 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। अच्छा, रो वाइज जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव 5 इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। तो मान लेता हूँ कि ये अगर a है तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 1, a प्लस 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 2, और ये हो जाएगा a प्लस। द कॉलम वाइज भी यही बता दिया, द कॉलम वाइज एवरेज आल्सो फॉर्म 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 5। यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मान लेता हूँ ये b है तो ये हो जाएगा तुम्हारा b माइनस 1, सॉरी प्लस 1, b प्लस 2, ये हो जाएगा b माइनस 1, और ये हो जाएगा b माइनस। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करने की बात है। ये जो इनका सम है, ठीक है, ये जो इसका एवरेज है, एवरेज निकला तो यानी कि ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से तो इनका पूरा टोटल का सम निकल जाएगा। सेम चीज हम यहाँ कह सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से इनका सम मिल जाएगा। यानी कि 5 को ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं बिकॉज आई नीड टू हैव स्पेस। 5a-2, ठीक है, प्लस 5a-1 प्लस 5a प्लस 5a प्लस 1 प्लस 5a+2, वो क्या होने वाला है, ये इन सब का सम ही होने वाला है। ये जो पूरे 25 हैं, और ये 25 क्या है, ये n नेचुरल नंबर्स हैं, 25 एंड 25 n नेचुरल नंबर्स हैं, जिनका सम क्या हो जाएगा, 25 इंटू 26/2, एज सिंपल एज दैट। यानी कि 25 इंटू 26/2, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, सॉरी, यानी ये हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा तुम्हारा 13 5 65, कैरी 6, 13 टू 26, तो आ जाएगा तुम्हारा 325। यानी कि इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 325। अब इसको यूज करके आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इससे जरा ए की वैल्यू निकाला जाए। ये तो यार, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, देखो, इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या, a-2 प्लस a-1 प्लस a-1 प्लस a+2 इज इक्वल टू 325। यानी कि ये कैंसर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 a इज इक्वल्स टू 325, यानी कि 25 a इज इक्वल टू 325, यानी कि a की वैल्यू मिल गई 30। ठीक, अगर a की वैल्यू 13 मिल गई तो यहाँ पे ये सारी कहानी मिल सकती है। ठीक, अगर a की वैल्यू 13 है यानी कि 13 5 जा 65, यानी कि ये क्या होना चाहिए था, 65। ये क्या है, a की वैल्यू क्या है, 12, यानी कि ये क्या होना चाहिए था, 60। इसी तरीके से ये क्या होना चाहिए था, 55, ये क्या होना चाहिए था, 60, सॉरी 70, एंड उसके नीचे क्या होना चाहिए था, 75। और सेम चीज से हम ये भी निकल सकता है बी, अगेन वो बी की वैल्यू भी सेम ही आने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो उसको रिप्लेस कर लो उस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जगह बना लेता हूँ। सेम चीज अपन बी के लिए भी कह सकते थे, वही चीज को सॉल्व करेंगे तो वो वही बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 70 और 75, और जब यही चीज तुम जब बी लेके करोगे तो सेम वैल्यू ही आने वाली, तो ये बन जाएगा कितना, 55, 60, 65, 70 और 75, और इन जो पूरे का सम है ये क्या है, 325 है। अब ये पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया हमने यूजिंग पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। ड्यूरिंग एवरी इंस्पेक्शन लाइन 2 कंसिस्टेंटली शोज अ हायर नंबर ऑफ डिफेक्टिव पैकेट्स देन लाइन 1। हर बार इंस्पेक्शन में क्या हो रहा था, लाइन 2 की ज्यादा बड़ी वैल्यू थी इसके मुकाबले में, दिख रहा है ये तो। ठीक है, लाइन 5 कंसिस्टेंटली शोज द हायर नंबर ऑफ डिफेक्टिव वैल्यू देन लाइन 5, ये भी दिख रहा है कि 5 की वैल्यू ज्यादा है इसका। फॉर ईच लाइन, लाइन की बात हो रही है, द थर्ड इंस्पेक्शन वैल्यू इज एक्जैक्टली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ। यानी कि ये जो पार्ट है ये एवरेज है किसका, फर्स्ट का और फिफ्थ का। यानी कि अगर ये 13 है तो यानी कि ये इन दोनों का सम 26 होना चाहिए था, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ऑल्सो वी कैन सी कि ये 65 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी था कि मैं यहाँ से ये जो मैंने एन नेचुरल नंबर से निकाला है ये तुम इधर से भी निकाल सकते थे, कि यानी कि ये 65 है तो ये 65 में 5 डिवाइड करके यहाँ से 13 मिल जाता, 12 11 ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये दोनों पॉसिबल था। ठीक है,
अच्छा, चलो थोड़ा जगह बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट ना। अब इनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ, अब अपने पास क्या पता है कि यार ये जो वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू कितनी है? 26 है, या इन दोनों की वैल्यू कुछ होनी चाहिए। एक तो ये पता है। अब तुम्हें जब भी ऐसे सेटअप मिले ना कि जहाँ पे तुम्हें नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? देयर आर सर्टेन थंब रूल्स। पहला थंब रूल कहता है कि भाई हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के सम वाले नंबर्स कॉलम को पकड़ो। यानी कि यहाँ पे ये जो ये वाले पार्ट हैं, इनको 55 में या 75 वाले तुम्हें मदद कर सकते थे। द अदर रूल सेज कि भाई ऐसा रो ऐसा कॉलम जो सबसे ज़्यादा फिल हो वो ज़्यादा भरो। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो जनरली तुम्हें मदद करेंगी अप्रोच करने के लिए। मतलब इन्हीं 2 लॉजिक को लेके स्टार्ट करा करो। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यार लाइन 3 थोड़ी ज़्यादा भरी हुई है, तो इसको मैं मदद ले सकता हूँ। अब लाइन 3 में क्या पता था? लेट्स से दिस इज़ x, दिस इज़ y, तो x प्लस y इज़ इक्वल्स टू 26 है, मेरे को ये मिला हुआ है। ठीक है? अब x प्लस वाई जो 26 है उसको थोड़ा सोचा जाए कि वो वैल्यू क्या आ सकती है। अब यहाँ पे ना ध्यान देना, ये क्या है? लेट्स से a और ये है b, ठीक है? ये क्या होने वाला है? और यहाँ ले लेते हैं c और d, ऐसा मान लेते हैं ये ना। क्यों मैंने ये वाला ले लिया? बिकॉज़ मैं इसी रो पे पूरा ध्यान देने वाला हूँ, ये 55-55 पे, बिकॉज़ ये और ये भी मिलेगा, ये और ये भी मिलेगा, ठीक है? अभी मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? a कौन है? कोई ऑड नंबर है, क्योंकि 1 प्लस a यहाँ पे अगर एवरेज बनाना है तो 1 को ऑड देना पड़ेगा। बी कौन है? कोई इवन नंबर है, ठीक है? लॉजिक, ठीक है? सिमिलरली सी कौन है? इवन नंबर है। एंड डी कौन है? कोई ऑड नंबर है, ये दिख रहा है मेरे को। अब ये पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो ये ऑड इवन वाला चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना तुम्हें मदद करेगा, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को पता है कि यार a प्लस बी प्लस वाई इज़ इक्वल टू समथिंग एंड x प्लस सी प्लस डी इज़ इक्वल टू समथिंग, ठीक? लेट्स स्टार्ट विथ दिस 75 वाले पे ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है यार कुछ इसमें मिल सकता है, ठीक? a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है? 75 माइनस 4 एंड 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 66। अब यार एक चीज समझना, ये जो ये हमने निकाला है a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 76, ठीक है? इसमें y की वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूँ? a प्लस बी की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? ये सोचा जाए। क्या मैं a प्लस बी की वैल्यू को कुछ ऐसा ले सकता हूँ जिससे अपने को y, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू जो इनका सम है, ये क्या होने वाला है? कुछ ऑड नंबर आने वाला है, यानी कि y की वैल्यू भी कोई ऑड नंबर आने वाली है। ये पॉइंट समझ रहे हो? बिकॉज़ a इज़ ऑड, b इज़ इवन, तो इनका सम तो ऑड नंबर ही आएगा एंड y विल आल्सो बी ऑड नंबर, तभी वो इवन बनेगा। आई होप दिस इज़ करेक्ट, ठीक है? y इवन का मतलब y की वैल्यू को मैं 25 ले सकता हूँ, 25 ले सकता हूँ, 25 और 1 नहीं, 25 नहीं ले सकता। मैं y की वैल्यू को 23 ले सकता हूँ, ऐसे करके मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है? y की वैल्यू मैं सबसे कम क्या ले सकता हूँ, सबसे ज़्यादा क्या ले सकता हूँ? अगर मैं इस पे दिमाग लगा लूँ तो मेरा काम बन सकता है। y की वैल्यू को मैं 25 तो नहीं ले पाऊँगा, 23 ले सकता हूँ, ठीक है? अगर y की वैल्यू मैं 23 लेता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? 23 और 3, ऐसा। इसी तरीके से 21 और 5, लेकिन 5 तो अवेलेबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसे ही y की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? 19 एंड 7, ठीक है? व्हिच मेक सेंस, कर सकता हूँ। अभी देखो 23 एंड 3 की ले सकता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे 23 और 3, 25 और 1 ले नहीं सकता था, ठीक है? 21 एंड 5 ले नहीं सकता बिकॉज़ 5 इज़ नॉट अवेलेबल, वो दोबारा मैं लिख नहीं सकता। 19 एंड 7 ले सकता हूँ। 17 और 11 भी ले सकता हूँ, ठीक है? कैन आई गो फॉर रिमेनिंग वैल्यू 15 ले सकता हूँ? 15 लूँगा तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? द अदर वैल्यू हैज़ टू बी 17 और 9 होना था, सॉरी, और 15 और 11 होना था। ठीक, ऐसे करके आई कैन फिगर आउट द वैल्यूज़। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना ना, ये जो ये वैल्यू है a प्लस बी, ये क्या बन सकता था? मैक्सिमम, मैक्सिमम बन सकता था 50, ठीक है? मैक्सिमम 50 बनने का मतलब बिकॉज़ a प्लस बी का 25 भी नहीं, 49 बन सकता था, 25 प्लस 24 ऐसा कुछ बन सकता था, ठीक है? अगर मैं 49 भी लेता हूँ देन स्टिल मेरे को y की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 17 तो बेयर मिनिमम लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ करेक्ट, ठीक है? मतलब दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। मैं अगर a की वैल्यू को 49 ले रहा हूँ, क्योंकि a और b को इंटीजर बनाना है और 2 बड़े अलग-अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर लेना था, और वो 25 नहीं ले सकता, 25 और 25, 49 लेता हूँ। उस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17, यानी कि y की वैल्यू को मैं 17 के नीचे नहीं ले सकता, यानी ये केस भी मेरा एलिमिनेट, ठीक है?
नाउ आई नीड टू थिंक ऑन ये केस, ये केस, ये केस। अच्छा, कैन आई गो फॉर y इज इक्वल टू 17? कब मिलेगा? जब a की वैल्यू को 25 और b की वैल्यू को 24, या उल्टा लेना पड़ेगा ना, मतलब a की वैल्यू को मेरे को लेना पड़ेगा 25 और b की वैल्यू को 24 लेना पड़ेगा, तभी ना, ऑड इवन के लिए। अब पंगा क्या है, a इज स्मॉलर देन b, यहाँ लिखा था ना, फॉर ईच लाइन लाइन 2 कंसिस्टेंटली शोज अ हायर नंबर, यानी कि यार ये तो केस गड़बड़ हो गया, यानी कि आई कैन नॉट गो फॉर दिस केस। अच्छा, कैन आई कंसीडर 19 और 7 वाला केस? ये सोच सकते हैं। अगर इधर 19 है, ठीक है, मतलब लेट्स से दिस इज 19, अगर ये 19 है तो ये कितना बन जाएगा, मतलब 66 माइनस 19, 66 माइनस 20 कितना होता है, 46, यानी 47 बनाना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू को 47 होना पड़ेगा व्हेन b इज इक्वल टू 19, ऐसा। ठीक, a प्लस बी 47 कब बनेगा, इनको यूज करके 25 और 22 से बन सकता था, बन सकता था, बट क्या 25 यहाँ लेना पड़ेगा, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा। अच्छा, 23 और 24 लेना पड़ेगा, है ना, 23 एंड 24 ये बन सकता है, 23 एंड 24। अब प्रॉब्लम क्या है, जब तुम 23 और 24 लेते हो, यानी कि यहाँ पे 23 और यहाँ 24, यानी कि इनका जो एवरेज आया होगा वो क्या आया होगा, इनका एवरेज यहाँ पे ये क्या होगा 24 प्लस ये, यानी कि ये क्या बन गया होगा 13, एंड 13 इज ऑलरेडी अवेलेबल ओवर हियर, यानी कि मैं अब 19 भी नहीं ले सकता, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 23 एंड, ठीक। आई होप ये वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा क्लियर होगा, अगर नहीं है तो इसको वापस जाके रिविजिट करना, ठीक है। ये सारे केसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस केसेस, मतलब बिना केस बनाए मत निकल जाना कि अरे हाँ यार सर आपका मैंने देख लिया था, तो आई थॉट कि ये तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज एक केस बनाना ना तुम, ठीक। तो अब मेरे को यहाँ पे ये चीजें मिल चुकी हैं, ठीक, एंड ये क्या बन गया, 23 एंड 3 बन चुका है मेरा, ये आ गया 3, ये आ गया मेरा 23, ठीक है। इफ दिस इज 23 एंड दिस इज 3, यानी कि मेरा ये वाला केस मेरे को मिल चुका है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू को अब मेरे को ये भी मिल चुकी है, a प्लस बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए था, तभी हो पाएगा ना, ठीक। a प्लस बी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 63, ठीक। अच्छा, चलो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, साथ साथ में जगह बना लेते हैं, बिकॉज आई नीड टू हैव स्पेस, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू को 63 सोचना है अभी, बस अपन ये देखो दिमाग लगाते हैं इसमें, तो अपने वो भी वैल्यू निकल जाएगी, और ऑड इवन पे स्टिक रहेंगे ना, वो जो पार्ट है वो तुम्हें मदद करता जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 23 एलिमिनेटेड, 3 एलिमिनेटेड, हाँ, अब चलते हैं a प्लस बी 63 पे। 63 का मतलब आई नीड टू टेक 25 एंड द रिमेनिंग वैल्यू एज अनदर इवन नंबर, कुछ ऐसा, मतलब 25 तो देखो यहाँ पे ले नहीं पाऊंगा, वो तो फॉर श्योर एकदम सॉर्टेड है, ठीक है। अब a की वैल्यू को ऑड लेना है, 23 नहीं ले सकता ना, क्योंकि मैंने दे दिया, 21 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे 21 लूंगा तो b की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 63 एंड इधर 40, ओह सॉरी 63 मैंने गलत लिख दिया, माय बैड। कितना था, 6 था ना, 66 माइनस 23, 66 माइनस 23 करना था ना, मेरी गलती। 66 माइनस 23 कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 43, हाँ। चलो, ये ले नहीं सकता ए की वैल्यू को, ठीक, ए की वैल्यू ये ले नहीं सकता, ये ले सकता हूँ। अगर ए की वैल्यू 21 लूंगा तो बी की वैल्यू को 22 लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये जो ए और बी मैं लेके चल रहा था ये, अगर ए की वैल्यू को 21 लूंगा तो बी की वैल्यू को 22 लेना पड़ेगा, विच इन अ वे मेक सेंस, बन सकता है, बन सकता है। अच्छा, ए की वैल्यू को मैं 19 ले सकता हूँ क्या, ए की वैल्यू को 19 लेता हूँ, ए की वैल्यू को 19 लूंगा तो क्या मिलेगा, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 22, नहीं, तुम्हारा इधर कितना आ गया 4, और ये आ जाएगा तुम्हारा 24, बी की वैल्यू को लेना पड़ेगा 24, ठीक है। अब क्या पंगा है इसमें, ये और ये दो केस, ठीक है, और ए की वैल्यू को अगर मैं 17 लेता हूँ तो बी की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा 26, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये एक्सीड कर जा रहा है। अब इन दो केसेस में अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है। अपने को क्या पता है, बी की वैल्यू को मैं 24 नहीं ले सकता, अगर 24 लेता हूँ तो 24 और 2 का एवरेज कितना बन जाएगा 13, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। अब जस्ट बिकॉज ये मिल गया है तो अपने लिए थोड़ा चीजें और आसान हो गई हैं, ठीक। फटाफट से आते हैं, इन पे दिमाग लगाते हैं। ए की वैल्यू को 21 मिल गया तो ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू मिल गई 22, ठीक है। सिंस इट इज 21 एंड 1, तो यानी कि ये कितना आ गया
22 यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 11, यहाँ पे क्या आ गया 22 और 2 यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 12, ठीक है। एंड अगर ये 2 मिल गया अपने को तो अब इधर ये भी दिमाग लगाया जाए इन पे सी और डी इसी तरीके से जैसे मैंने ये निकाला है, ठीक? चलो, साथ-साथ में जगह बनाते हुए चलते हैं। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़िया सेट है ये, मतलब फॉर लर्निंग इट इज़ वेरी बढ़िया, एकदम ऐसा ही सेट है जो कैट के अंदर तुम्हें फँसाता है, ठीक है। 21 एंड 22 एलिमिनेटेड एंड 11 और 12 भी मैंने निकाल लिए ना, 11 और 12 भी मैंने आइडेंटिफ़ाई कर लिए। अब मेरे पास क्या बच रहा है? अब यही कहानी मैं इधर चलाता हूँ सी और डी के लिए, ठीक है। मेरे को क्या पता है सी और डी कैसे इवन और ऑड हैं, ठीक है। अपने को डी के बारे में और सी के बारे में क्या पता है 1 + 2 + 3 कितना हो जाता है और 55 बना है। तो 55 माइनस 6 तो यानी कि सी प्लस डी कितना होने वाला है? 49 होने वाला है। यार 49 तो एक ही केस से बनेगा 25 और 24 परफेक्ट। यार ये तो एकदम तुरंत से मिल गया। ठीक, तो ये पार्ट तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था, यानी कि यहाँ पे मिल गया मेरे को 25 और यहाँ मिल गया मेरे को 24। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर क्योंकि 55 बनाना था, ये 6 है तो यहाँ से मिल गया। सिंस इट इज 25 तो ये क्या हो जाएगा 15 एंड सिंस इट इज 24 तो ये क्या हो जाएगा 14। तो यानी कि मेरे को 4 नंबर और यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गए। मैं वो चारों नंबर को भी एलिमिनेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो 24, 25 भी चले गए एंड 14, 15 भी भाई साहब गायब हो गए। अब मेरे को क्या बच रहा है 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 20। ठीक है। अब क्या करा जाए? अब मेरे पास बचे हैं जो बचे हुए कहानी बिकॉज़ बाकियों के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन के नाम पे यही पता है कि यार इनका जो वैल्यू है वो आपस में इस तरीके से है कि भाई ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है। यानी कि लाइन 2 की वैल्यू फॉर इंस्पेक्शन 2 इज़ ग्रेटर देन लाइन 1 की वैल्यू फॉर इंस्पेक्शन 2 एंड ऐसा कुछ करके। ठीक? अब ये 55 कैसे बनेगा ये सोचा था। लेट्स से दिस इज़ अ, इसको कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से एम और एन, ओ और पी ले लेते हैं। ठीक है? ऐसा। तो m प्लस n क्या हो सकता है? वो सोचते हैं। m प्लस n क्या हो सकता है? m प्लस n क्या होगा? 55, ठीक है? 55, 55 में से 21, 11 और 1 माइनस कर लो। तो 12, 12 और 20, 32, 32 और 33, ठीक है? 25 माइनस 33 कर देंगे तो बन जाएगा कितना? 22 यानी कि मेरे को क्या करना है? 22 आइडेंटिफाई करना है। 22 कैसे आएगा? 20 और 2 से तो नहीं आ सकता, ठीक है? 19 और 3 से नहीं आ पाएगा, 17 और 5 से नहीं आ पाएगा, 16 और 6 से हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब वो यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 और 6 होना चाहिए एम और एन की वैल्यू या 6 और 16 होगी ऐसा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ये भी एलिमिनेट कर लेता हूँ बिकॉज़ आई हैव आइडेंटिफाइड दीज़ टू मतलब ये वैल्यू मैप हो चुकी है ना, अब ये वैल्यू मेरे को तंग ना करें इसलिए मैं इसको हटाते जा रहा हूँ। ठीक है। चलो इसी तरीके से ज़रा बाकी ओ और पी की वैल्यू को भी सोच लेते हैं। ओ और पी की वैल्यू क्या होगी? ओ और पी का मतलब ओ प्लस पी क्या होने वाला है? ओ प्लस पी क्या आने वाला है ये सोचते हैं। ओ प्लस पी बोले तो 22, 12, 13, 22, 12 और 3, 22, 12 और 3 कितना होता है? 22, 12 और 3 तुम्हारा सॉरी 22, 12 और 2 ठीक है 22, 12 हो जाता है तुम्हारा क्या कर रहा हूँ 6 और 36 है ना? ठीक है 36, 36 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 24 यानी कि O प्लस P कितना होना चाहिए? ओ 24, 24 कैसे बनेगा? 20 प्लस 4 नहीं बन सकता। 17 और 7 बन सकता है और कुछ भी नहीं बन पाएगा यानी कि इसी तरीके से O और P की वैल्यू मिल गई है कितना? 17 और 7 या 7 और 17 ठीक है। यहाँ पे ये मेरे को केसेस मिलते हुए दिख रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे ना लिखते जा रहा हूँ। थोड़ा मैं जगह बना लेता हूँ। मेरे को क्या मिला था यहाँ पे? या तो ये 16 आएगा, 6 आएगा, या तो 6 आएगा और 16 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 17 और 7 आ सकता है, 7 और 17 यार ये सम पे मेरे को मदद करेगा। ठीक है, आई शुड वेट रेदर या रुकता हूँ ना मैं ओ और पी वापस लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी ये श्योर नहीं है ये किस ऑर्डर में आने वाला है बिकॉज़ उसी ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसी तरीके से ज़रा इन दोनों का भी लिख देते हैं। इन दोनों का क्या बच रहा है? इन दोनों का क्या बच रहा है उसके पहले मैं नंबर्स को एलिमिनेट कर लेता हूँ। ठीक है? नंबर्स यानी कि 17 एंड 7 आर गॉन, 17 एंड 7 आर गॉन। ठीक है। अच्छा बाकी जो 4 नंबर है उस पे दिमाग लगाते हैं फटाफट से।
बाकी 4 नंबर क्या हैं? 70, 70 में से 24, 4 28, 28 एंड 10 38, 38 एंड 4 42, 42 यानी कि 70 माइनस 42 करेंगे तो 8 एंड 28, अगेन 28 ही बच रहा है। फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 70 माइनस 24 एंड 4 28, 28 और 42, 42 में वापस 28 बच रहा है, यानी कि इन दोनों का सम, लेट्स से दिस इज ई एंड एफ। तो ई प्लस एफ मेरे को मिल रहा है 28। वो कैसे बनेगा? 20 और 8 से नहीं बन सकता, 19 और 9 से ही बनेगा। ठीक है, 19 और 9 से, यानी कि एक और चीज़ मिल गई है, ई और एफ मिला है 19 और 9, 9 और 19। ठीक है, तो 9 एंड 19 इज़ आल्सो रॉन्ग, यानी कि 10 और 20 है जो लास्ट में बचा होगा। ठीक है, लास्ट में 10 और 20 है जो कि इन सम ऑर्डर बचा हुआ है। ठीक, 19 और 9 गया तो 10 और 20 है जो बचा है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे रो वाइज़ चेक करते हैं। रो वाइज़ क्या था? 60 बनाना था। तो 60 बनाने के लिए मेरे को 8 है, मेरे को 52 बनाना है। तो इन दोनों का कुछ ऐसा, यानी कि इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का सम कुछ बना सकते हैं। यार ये क्या बन रहा है? 16 और 7 और 17 और 6। अगर ध्यान दो ना यार, ये जो कॉम्बिनेशन है, 16 और 7 बनाता है कितना? 23, और 17 और 6 भी बनाता है 23। ठीक है? तो यानी कि ये जो पहला वाला हिस्सा है वो 23 बन जा रहा है। ठीक है? यानी कि इसको मैं थोड़ा एक तरीके से लिखना शुरू करता हूँ, ना? तरीके से लिखने का मतलब ऐसा? पॉइंट समझ रहे हो? मतलब प्रोबब्ली 16 7 हो सकता था या 6 और 17 हो सकता था, तो ये दोनों का सम 17 होगा। इसी तरीके से 6 और 17 हो सकता था, 16 और 17 हो सकता था। दोनों हो जाएगा 23। अच्छा, 23 प्लस 8 कितना हो जाता है? 23 प्लस 8 हो जाता है तुम्हारा 31। पीछे क्या बच रहा है? 31 और 9, और उधर क्या बच गया? 9। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 9 और 20 या 10 और 19। ठीक है, परफेक्ट, ये भी सेट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या मिल सकता था? यहाँ पे तो मैं देख रहा था कि मैं इसको दे सकता था 90 और 9, 9 और 19 अलोंग विद दैट, ये या तो 10 हो सकता था और ये हो सकता था 20, या तो ये 20 हो सकता था, ये हो सकता था 10। ठीक है, ये पार्ट अपने यहाँ पे हमने फिगर आउट कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बेसिस पे देखते हैं अपन और क्या, इसको और क्या एग्जैक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज़ इसका लॉजिक नहीं पूछा हुआ है। तो यार ये एक थोड़ा-सा ना अपने को तंग कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सम ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ इंस्पेक्शन रीडिंग ऑफ लाइन 2? लाइन 2 का फोर्थ क्या पूछा हुआ है? लाइन 2 का सेकंड एंड फोर्थ, इन दोनों का सम। तो यार इन दोनों का सम तो हमने निकाल रखा था ना, ये तो 24 ही आएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। ये तो 17 और 7 व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग ऑफ एनी सिंगल लाइन? यहाँ पे दिख रहा है 20 हो सकता था, यहाँ पे भी 20 हो सकता था, यहाँ पे भी 20 हो सकता था, 20 हो सकता था, यानी कि क्या आ रहा है? इट हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर सी, 20 ही आएगा। देख सकते हो यहाँ पे, किसी पे भी जा रहा हूँ तो वो 20 ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ लाइन 4 एंड फिफ्थ रीडिंग ऑफ लाइन 2? फर्स्ट रीडिंग ऑफ लाइन 4, फर्स्ट रीडिंग ऑफ line 4. What is the first reading of line 4? First reading of line 4. क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये रहा 24 एंड फिफ्थ रीडिंग ऑफ लाइन 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ, तो क्या होना चाहिए था? टी। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी, आई थिंक कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, एक बार फिर से हाइलाइट करते हुए चलता हूँ ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ लाइन 4? फर्स्ट रीडिंग ऑफ लाइन 4 यानी कि इसकी, एंड फिफ्थ रीडिंग ऑफ लाइन 5, लाइन 2, फिफ्थ रीडिंग ऑफ लाइन 2, नहीं ठीक है। आंसर क्या था? एकदम सही था, यही होना चाहिए था। व्हाट इज़ द फोर्थ रीडिंग ऑफ लाइन 5? फोर्थ रीडिंग ऑफ लाइन 5, 20 और 10, ईदर 10 और 20। ठीक है। आई वुड रेट इज़ एज़ अ मॉडरेट सेट, मतलब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के सेट के लिए बढ़िया, लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया सेट है। मतलब इफ यू हैव सीन दैट कैट 23 24 की प्लेस, उसमें सेट नंबर 1 कुछ इसी तरीके से पूरा नंबर क्रंचिंग पे पूरा डेवलप्ड था। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।